Assalamu alaikum, students of class 9th. Today is my lecture number 21, and in this lecture we are going to study about the group 7A halogen family. Class, in the previous lecture we have studied about group 4A, 5A and 6A. Now today we will study about group 7A, 8A and about the transition elements. Okay, now class, group 7A, these are known as the halogen family. They are known as the halogen family. In this group, there are the elements fluorine, chlorine, bromine, iodine, and astatine. Okay. Except astatine, all the other elements are non-metals and exist as diatomic molecules. ठीक है ना, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये सारे क्या है, and astatine. These all are the halogens. It is metallite. ठीक है, metallite. The metallite, you know, the substances which can they contain or they possess the properties of metals as well as non-metals. ठीक है, these all are non-metals. ये सारे क्या है, non-metals है, non-metals. ओके, नॉन मेटल्स में से फ्लोरीन, ठीक है, रूम टेम्परेचर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस. फ्लोरीन एंड क्लोरीन बोथ आर gases. Bromine is found in the liquid form and iodine is found, it exists in the solid form. Right class? These are very important elements which are used in the laboratories and in the chemical research work, in different practicals. So we should know the detail of this. Right class? So at room temperature, fluorine, chlorine are gases, bromine is a liquid and iodine is a solid. They are the diatomic molecules. What is meant by diatomic molecules? When fluorine reacts with another fluorine atom, they will form F2 molecule. F2. It is 2, so it is called as the diatomic. In the same way, chlorine, diatomic. ठीक है ना? Bromine, Pr2, I2. These all are the diatomic molecules. ठीक है? They have high ionization energy and large negative electron affinities. ठीक है ना? इनकी जो ionization energies बहुत high होती हैं. They have the high ionization energy and they have the high electron affinity. Acha, what are these terms? What are what is meant by the ionization energy and the electron affinity? We will study in detail, might be in the last of this chapter. ठीक है, इसी चैप्टर के हम लास्ट में पढ़ेंगे इसकी. What is the ionization energy and what are the electron affinity. ठीक है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ आपको कि क्या है ये ionization energy and electron affinity. Ionization energy, the minimum energy required to take or release one electron from the outermost shell of the atom. यानी like कोई भी आपके पास एटम है और इसका जो कोई एटम है, इसका न्यूक्लियस है ये और इसके इलेक्ट्रॉन्स है, तो लाइक 2 इलेक्ट्रॉन्स है. एग्जाम्पल दे, सपोज एग्जाम्पल. ठीक है, अब इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर है रेडिएशन ऑर्बिट से निकालने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए किसी दूसरे एटम को जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज नोन एज द आयोनाइजेशन एनर्जी. राइट क्लास? द मिनिमम एनर्जी, यानी कम से कम एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं. अगर ज़्यादा एनर्जी होगी तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे. ठीक है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे. तो कम से कम एनर्जी जो कि किसी इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए रिक्वायर्ड है, वो कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी मींस लविंग. ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग. राइट, यानी द एटम व्हिच विल बी इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन चाहता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना चाहता है. एक मिस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी and ionization energy.
दे बोथ रन टुगेदर। जब एनाइजेशन एनर्जी काम करेगी तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो कहीं किसी ना किसी एटम में तो जाएगा ना, ठीक है ना, किसी कोई और एटम उसको गेन करेगा, तो जो एटम गेन करेगा उस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करेगा। राइट क्लास, अगेन रिपीटिंग सिंपल सी चीज है कि जो है आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, कम से कम एनर्जी यूज की और वो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, कोई एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है ऑर्बिट से बाहर निकला है वो किसी एटम के पास जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं जाके वो सेट होगा, ठीक है। तो वो जो है इलेक्ट्रॉन जो जाएगा और वो किसी जिस एटम के पास जाएगा यानी उस एटम को उसकी रिक्वायरमेंट है, वो चाहता है कि वो उसको ले उसको गेन कर ले, उसके पास स्पेस है, उसके पास इतनी जगह है कि उस इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन है कि वो चाहता है कि उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ रख ले। तो जो एटम उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करेगा, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का प्रोसेस हुआ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ने भी वर्क किया। तो दिस बोथ आर साइमल्टेनियस प्रोसेस, यानी साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो इट इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टूल। हम इसको आगे बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे क्लास। अभी मैंने आपको थोड़ा सा इसका टर्म साइड में इसका इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। अच्छा, दे हैव द हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या होगी इनकी जो जितने ग्रुप 7 के एलिमेंट्स हैं, दे हैव द हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड दे हैव द हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रॉपर्टी। ये दो प्रॉपर्टीज इनके पास होती हैं। Hence they easily accept an electron to form halide ion, ठीक है। इसलिए जो है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करता है एटम, ठीक है, ये दोनों इनके पास प्रॉपर्टीज होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन ले भी यानी इलेक्ट्रॉन मिनिमम एनर्जी के साथ प्रोवाइड कर भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। जब फॉर एग्जांपल लाइक जो है कि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करते हैं, तो क्या होगा, लाइक क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ले लिया किसी दूसरे एटम से, तो क्या होगा, ये इट विल गेन द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसका फ्लोरीन है, इट विल गेट द नेगेटिव चार्ज, ब्रोमीन इट विल गेट द नेगेटिव चार्ज, ठीक है, आयोडीन इट विल गेट द नेगेटिव चार्ज। ओके, आई वुड लाइक टू टेल यू फ्यू मोर प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट्स, ठीक है। बुक में नहीं है लेकिन एक दो प्रॉपर्टी मैं आपको एक्स्ट्रा बताती हूँ, ठीक है ना, बता रही हूँ फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आयोडीन इज द एलिमेंट व्हिच हैज द हाईएस्ट साइज अकॉर्डिंग टू द साइज की हम बात कर रहे हैं, तो साइज के हिसाब से आयोडीन ऐसा एलिमेंट है जिसका साइज सबसे ज्यादा लार्जर होता है। देन आफ्टर इट द साइज ऑफ ब्रोमीन जैसे छोटा है, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइज के अकॉर्डिंग आयोडीन बहुत ज्यादा बड़े साइज का होता है, ठीक है, इसके एटॉमिक नंबर ज्यादा होते हैं तो नंबर शेल ज्यादा गेन करता है, और इसका एटॉमिक नंबर इसका जो है ना साइज भी एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम पढ़ा है ना नहीं, तो एटॉमिक वॉल्यूम जो है यानी नंबर ऑफ शेल की वजह से एटॉमिक वॉल्यूम इसका ज्यादा होता है। फिर इसके उससे कम ब्रोमीन का है, फिर उससे कम क्लोरीन का है। सो फ्लोरीन हैज द स्मॉलेस्ट साइज, सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट साइज किसका है, फ्लोरीन, ओके ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी के हिसाब से इनका जो ऑर्डर है क्लास वैसे है। रिएक्टिविटी यानी कौन सा बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट है जो बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है वगैरह, ठीक है ना, इस लिहाज से फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ठीक है ना। यानी रिएक्टिविटी के हिसाब से फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन। बट ठीक है ना, बट प्रैक्टिकली we see that chlorine is more reactive. सबसे ज्यादा इन हैलोजेंस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्लोरीन है। क्यों है क्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव? क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट होता है, बहुत ज्यादा छोटा साइज होता है, जो कि इसकी रिएक्शन में प्रॉब्लम करता है, ठीक है। जो क्लोरीन का साइज है एक बहुत आइडियल साइज है, जिसकी वजह से जो साइज है उसका वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में सपोर्टिव होता है, हेल्पफुल होता है। तो इसलिए क्लोरीन इज प्रैक्टिकल, इट इज वेरी रिएक्टिव, है ना। इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। आप पढ़ेंगे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट क्लास। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो आप आगे चल के पढ़ेंगे। तो बहरहाल जो है इसकी जो प्रॉपर्टी देखने में लाइक इस तरह, राइट, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, बाकी रिएक्टिव एलिमेंट है, लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इसका साइज बहुत फेवरेबल है डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस में। ओके, इट इज ऑल अबाउट द ग्रुप 7A. Now after it we will move towards the group 8A. Class group 8A. Wait.
Okay, group 8A elements, they are known as the noble gases or they are known as the inert. ठीक है, inert और noble gases, group 8A. Okay, they are known as the inert और inert gases और noble gases, दोनों कहलानी है. ठीक है, noble gases और inert gases. ठीक है, their outermost shell is, you know that I will tell you why they are called as inert gases और noble gases. ठीक है, inert and noble दोनों आपस में अपोजिट है. inert आप समझ लेते हैं जिद्दी गैस. ठीक है ना, उर्दू में अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसका जिद्दी गैस. ठीक है ना, स्टबन गैस. ठीक है, और यह इसको अगर हम उर्दू में नॉबल गैस में ट्रांसलेट करें तो अच्छी गैस, शरीफ गैस. ठीक है ना. अच्छा, why do they have this type of names? ठीक है, इसके नियम ऐसे क्यों हैं? इसके नेम इसकी एक रीजन है. रीजन ये है अकॉर्डिंग टू द 2 and 2 फॉर्मूला. ठीक है, यू नो दैट इन द K shell there will be 2 electrons, in L shell there will be the 8 electrons. ठीक है ना, K में 2 होंगे, L में 8 होंगे. ठीक है, ठीक है, और M में जो है आपके पास 18 हो जाएंगे. इस तरह से N में जो है आपके पास आगे बढ़ते जाएंगे, राइट, प्लस 32. ओके, अच्छा यहाँ तक देखिए K और L. ठीक है, इनका जो ऑटोमोस्ट शेल होता है, राइट, वो कंप्लीट होता है. इन द ग्रुप 8A दे आर द एलिमेंट्स हीलियम. हीलियम है यहाँ पे एलिमेंट्स इसके पास. ठीक है, आर्गॉन, राइट, आर्गॉन, क्रिप्टॉन. ठीक है, क्रिप्टॉन, Kr, क्रिप्टॉन, xenon, Ze, xenon, and radon, right class, radon, Ra. ठीक है, Rn, radon, 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 right, Rn is the symbol, the symbols. ठीक है class, these are the elements, helium, argon, krypton, xenon, radon. ठीक है, ये एलिमेंट्स है. अच्छा, हीलियम में देखिए इसके K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका ऑटोमोस्ट शेल कंप्लीट है ना. ठीक है, अब कंप्लीट है तो क्या होगा, जब कोई इससे कोई रिएक्शन करना चाहेगा ना हीलियम से, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, उसे इजीली नहीं देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वांट टू लिव इन द पेयर. दे वांट टू रिमेन इन द पेयर फॉर्म. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की भी एक हैबिट होती है, एक नेचर होती है कि वो पेयर फॉर्म में रहना चाहते हैं. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ रहना चाहता है. इस तरह वो स्टेबल हो जाते हैं, स्टेबिलिटी मिलती है, नहीं स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, स्टेबल फॉर्म में होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली अगर पेयर फॉर्म में है तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहते. हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इनका पेयर कंप्लीट है, लाइक K 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इनका पेयर कंप्लीट है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहते. इसलिए कोई और एलिमेंट इनके सामने आता है रिएक्शन करने के लिए, तो वो थोड़ा रेजिस्टेंस शो करते हैं. ठीक है, रेजिस्टेंस शो करते हैं, तो स्टबन बिहेवियर शो करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाह रहे, रेजिस्ट करते हैं. इवन कि नेक्स्ट आने वाला जो भी एलिमेंट है, Z है, सपोज फॉर एग्जांपल Z एलिमेंट है, वो इससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि वो उससे इलेक्ट्रॉन ले ले, छीन ले उसे, तो वो उसको दे देगा, अदरवाइज वो शराफत से अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा उसको. ठीक है, तो इनकी हैबिट होती है कि दे डोंट वांट टू ब्रेक देयर पेयर, वो अपना पेयर नहीं ब्रेक करना चाहते, इसलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देते. ठीक है, राइट क्लास. तो ये तो हो गए इनर्ट के हिसाब से. ठीक है, इनर्ट गैसेस के हिसाब से, बिकॉज ये स्टेबल बिहेवियर शो करते हैं किसी रिएक्शन के लिए. अच्छा, नोबल गैसेस क्यों कहते हैं? नोबल गैसेस भी इसलिए कहते हैं क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते. ठीक है, राइट. एक ही बात को 2 तरह से बयान किया गया है, 2 लफ्जों से बताया गया है, 2 अपोजिट वर्ड से बताया गया है, लेकिन मतलब वही है, सेम मीनिंग है. ये जो है इनका ऑटोमोस्ट शेल कंप्लीट होता है, तो ये किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते. ठीक है, राइट क्लास. इस तरह से आर्गॉन है आपके पास. ठीक है, आर्गॉन में भी अगर हम देखें तो इसका भी जो है ऑटोमोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट होता है. ठीक है, इनका भी ऑटोमोस्ट शेल जो है ये कंप्लीट होता है, राइट. तो जो है इसलिए ये भी जो है इसी तरह से भी अपने जो है एलिमेंट्स को लूज नहीं करना चाहते. ठीक है, राइट. इनका जो है लाइक आर्गॉन है, आर्गॉन का अगर हम लें इसका एटॉमिक नंबर, दैट विल बी द एटॉमिक नंबर इज 18. ठीक है ना, 18 इसका एटॉमिक नंबर है. ठीक है, अच्छा, 18 एटॉमिक नंबर है, तो इसकी कंफ्यूजन कैसे बनी? K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और L में 8 आएंगे, और M में यानी 8 और 8 10 हो गए, और M में 8 आएंगे, राइट क्लास. अच्छा, ये देखें, ये 2 and 2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग L शेल कंप्लीट है, L शेल कंप्लीट है, इसे कंप्लीट कहा जाता है. इनकम्प्लीट पेयर फॉर्म में कितने पेयर है? 4 पेयर बनेंगे, 4 पेयर बने हुए. तो ये L शेल से अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता ये. ठीक है, ऑटोमोस्ट शेल में M में भी देखा 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन 8 है नहीं, 4 पेयर है. 4 पेयर है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इजीली किसी दूसरे एटम को नहीं देना चाहता, क्योंकि इनके पेयर्स ब्रेक हो जाएंगे. पेयर ब्रेक, एक पेयर भी ब्रेक होगा तो 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे.
इन 3 पेयर्स और 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसलिए ये नहीं चाहते कि हम पेयर ब्रेक करें, तो इसलिए ये इनकी कोशिश होती है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही ना करें। इसलिए नॉबल गैसेस भी इनको कहते हैं, इनर्ट भी कहते हैं, क्योंकि इनर्ट बिहेवियर शो करते हैं, और नॉबल भी इनको कहते हैं। ठीक है, दैट इज द रीजन ऑफ द देयर नेम। अच्छा, अब देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। सही है, इनकी प्रॉपर्टीज देखिए क्लास, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आपके पास। अभी बताया था ना कि हीलियम है, ठीक है ना, इधर द एलिमेंट्स हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है ना, ज़ीनॉन एंड रेडॉन, ये सारे एलिमेंट्स हैं इनके। ठीक है, अच्छा और क्या है, इनकी जो देखा था लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहे हैं डाउन अप टू डाउन, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर, ज़ाहिर है इनके एटॉमिक वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अप टू डाउन एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और क्या है आपके पास, राइट प्लस ये है द रेस्ट ऑफ दिस एलिमेंट्स आर टोटली इनर्ट केमिकली। ठीक है, तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये इनर्ट होते हैं। ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन व्हिच हैव लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम सो लार्जली रिएक्टिव। जैसे क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन थोड़ा सा अलग बिहेव करते हैं, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन, ठीक है ना, ये थोड़ा सा रिएक्टिव होते हैं, लेकिन इसके अलावा जितने ये ज्यादा यूज पे भी नहीं आते। क्रिप्टॉन ज़ीनॉन है तो रिएक्टिव, लेकिन ज्यादा कहीं पे ज्यादा यूज पे नहीं है, लेबोरेटरी वगैरह में ज्यादा फंक्शन इनका नहीं है। लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स हैं इनके अलावा हीलियम हो गया, नियॉन है, आर्गॉन है, ठीक है, और रेडॉन है, ये सब के सब जो है ये जो है इनर्ट बिहेवियर शो करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, कम्प्लीटली इनर्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए जो है दीज आर कॉल्ड एज द इनर्ट गैसेस और द नोबल गैसेस। राइट, इसलिए कि इनर्ट फॉर्म में या नोबल गैसेस के फॉर्म में ये रिएक्शन ना करके पेयर फॉर्म में रहकर ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, ज्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं, दैट्स व्हाई दे डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। राइट क्लास, सो इट्स ऑल अबाउट ग्रुप 8A। क्लास क्वेश्चन ले लीजिएगा इसका, जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन लिए थे आपने, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप 7A एलिमेंट। राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 7A एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 8A एलिमेंट्स। ठीक है ना, ग्रुप 8A, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 7A हाइड्रोजन फैमिली, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 8A इनर्ट और नोबल गैसेस। राइट क्लास, तो सेम क्वेश्चन से सेम क्वेश्चन का पैटर्न है, तो इनके हमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेनी है। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट बाय द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत दफा रिपीट हुए, इसलिए से मैं कह रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को प्लीज कर लीजिएगा। ओके।